So n is always bigger and r is always small. Okay, so this formula, remember the formula, n factorial upon n minus r factorial. That is formula permutation. N objects taken out of n are objects, or r objects taken out of n objects are distinct objects, n distinct object. So r distinct objects are taken from n distinct objects is equal to n factorial upon n minus r factorial. That's the formula. And then npn, that is n distinct objects are taken from or taken from n objects is equal to n factorial. Why n factorial? थोड़ा सा सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा. नीचे क्या आना चाहिए? n minus n will be 0. 0 factorial is 1. So when you are taking all, आपके पास 10 रुपया और 10 के 10 आप ले रहे, that will be n factorial. So there's two formulas to remember. हो गया? चले आगे. अभी फॉर्मूला रिमेंबर करने को क्या करेंगे? WIP 5 दिन 10 दिन 15 दिन लगाएंगे ना. वो फॉर्मूला दिया है सर ने लर्न करने को, बड़े बड़े फॉर्मूले दिए ना मैंने. Immediately remember this, n factorial upon n minus r factorial, and the second case is n factorial. Actually second formula नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, तो आपका टाइम जाएगा, because here n things taken from n, so n minus n is 0 and 0 factorial, just अभी हम लोग ने देखा 0 factorial is 1, so denominator में 1 आएगा. n factorial upon 1 is what? n factorial. In how many ways are there to arrange, or how many ways are there to arrange the letters of the word Delhi? Okay. First question. Second question is, how many ways of this arrangement begins with the letter L, and how many arrangements can be made taken 3 letters at a time? There are 3 questions. Let us look at one by one. Okay. You can solve by formula, you can solve by vacant spaces. I don't mind, because as long as you're getting the answer, fine. So Delhi में कितने alphabets है? 5. And taken all 5 together, there are 5 letters in the word Delhi, and all are देखो distinct है. I've not used the word Mumbai. Mumbai में M twice आ जाता है. I've not used the word Maharashtra. महाराष्ट्र में तो A भी आता है, S भी 2 बार आ जाता है, A 3-4 बार आ जाता है, तो वो नहीं ले रहा हूँ. फिलहाल distinct लेना है. कौन सा word लिया मैंने? Any word where there is a distinct alphabets. India भी लेके नहीं चलेगा. India में I 2 बार आएगा, INDIA. Okay. So Delhi. So there are 5 distinct letters, I should say, in the word Delhi, and we have to arrange all 5 among themselves. So 5P5. 5 permutation 5. 5 things taken out of 5. So that is 5 factorial, and 5 factorial is 120 ways. अब अपने वेकेंट स्पेसेस से जाके करो तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है. 5 4 3 2 1 आएगा. All 5 to be arranged. Okay, so first में 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शंस, फिर 3, फिर 2, फिर 1. That is 5 factorial, 120. Next, L. If the arrangement begins with the letter L, then remaining 4 letters can be arranged among themselves in 4P4. टोटल 5, बट आउट ऑफ 5 हम लोग ने जैसा फिक्स किया था, वैसे इधर L को फिक्स किया मैंने. L is fixed at the left. So अपने पास 5 थे, 5 में से एक को फिक्स किया, बचे कितने? 4, और 4 के 4 यूज करने, तो 4P4, which is equal to 4 factorial, and 4 factorial is 24 different ways. And the last, 3 letters at a time. You're taking 3 letters at a time. The number of arrangement, total 5 letters. Out of 5 letters, you are taking 3 at a time. So it becomes 3 objects taken from 5. 3 objects taken out of 5. So 5 permutation 3. 5 factorial upon 5 minus 3. 5 minus 3 is 2 factorial, which is 120 divided by 2. 2 factorial is 2. 5 factorial is 120. 120 divided by 2 is 60. 60 different ways. Any doubt? There were 3 questions in one.
पहले दिल्ली को अरेंज करो, तो 5p5 which is 5 factorial. सेकंड में L should be your left alphabet, तो L को फिक्स किया, बचे 4, 4p4. और लास्ट केस you have to take 3 alphabets का वर्ड बनाना, तो out of 5 you are taking 3, so 5 factorial upon 5 minus 3, 5 minus 3 is 2, n factorial upon n minus r. Any doubt? Are you there also? सो रहे क्या? Any doubt? नो बोलेंगे, बाद में क्वेश्चन दे दूंगा तो गलत करो, बराबर कंसेप्ट समझ लो. 5 factorial. Second, why 4 factorial? Because well is fixed, so remaining are 4. Next, करो ये. लास्ट वाले को वैकेंट स्पेस से कैसे करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? क्या बोला है? हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड टेकन 3 लेटर्स एट अ टाइम. चलो वैकेंट स्पेस से करता हूं. कितने? 3 लेटर्स ही है, so 3 boxes. Three boxes, right? अब अपने पास कितने अल्फाबेट्स हैं? Who is asking me? Shivam. Shivam, how many total alphabets we are having? Shivam, how many total alphabets we are having? कितने अपने पास अवेलेबल है ऑल टुगेदर? 5. तो पहले बॉक्स में क्या आएगा? पहले बॉक्स में 5 आएगा. कैन यूज एनी अल्फाबेट हियर. दिल्ली में से कोई भी एक अल्फाबेट डाल सकते हैं, तो 5. अब कितने बचे तेरे पास? एक यूज कर लिया, बचे कितने? 4. तो नेक्स्ट बॉक्स में 4 और एक यूज किया आपने, 2 यूज कर लिए, इधर एक कर लिया, एक इधर कर लिया. अब कितने बचे? 3. कर इनको मल्टीप्लाई, बस खत्म हो गया. 3 ही चाहिए अपन को. आ जाएगा आंसर 60. So that's the way you should do. Vacant space से भी होता है. Most of the sums, vacant, in fact all the sums can be solved by vacant spaces. कभी टाइम लगता है, therefore जहाँ पे टाइम लगेगा there you can use this formulas. Yes, the next one. How many 3 digits number can be formed from the digits 2, 5, 6, 7, 8 if no digit is repeated? Solid by vacant spaces or solid by formula? I don't mind. Give me answer. सेम सेम अभी जो दिखाया वैसा ही सेम, खाली वो दिल्ली अल्फाबेट्स थे, ये डिजिट्स है, इतना ही फर्क. 60 आंसर. मैंने वेकेंट स्पेस से नहीं किया, मैंने इधर फॉर्मूला से किया, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला से क्या है, देयरफॉर आई एम यूजिंग फॉर्मूला. बट एनीवे यू डू इट, कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव. डू दिस. पहला पार्ट तो करो. How many numbers can be formed with digits 3, 4, 6, 7, 8 taken all at a time? इतना करो. नेक्स्ट पार्ट मैं समझा देता हूँ. Find sum of all such numbers. That I'll do. पहला पार्ट तो करो. How many numbers can be formed with digits 3, 4, 6, 7, 8 taken all at a time? सारे के सारे लेने आपको. Means how many digits are there? 5.
and all 5 you have to take. 5 out of 5, all taken, all बोला है. How many you are having? 5. And how many you are going to take? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाई कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। We are having 3, 4, 6, 7, 8, 5 digits. And how much to take? All. So क्या हो गया? 5 and 5. 5 and 5 is 5 factorial. 120 different ways. Is this clear? And you gave me answer also correct. Now, the next part says find sum of all such numbers. ये जरा ठीक से सुन लेना क्या बोल रहा हूँ. Find sum of all such numbers. Explanation देखो. Now consider any one of the 5 digits. I'm taking for example says 3 at the unit place, fixed. Unit place पे उसको fix कर दिया. The other 4 digits can be arranged in 4p4. Agreed? 5 है, 5 में से एक को fix किया मैंने. For example 3 को मैंने fix किया. तो अब मेरे पास बचते हैं 4, 6, 7, 8. Okay, that is 4 factorial. That is 24 ways to form the number that have 3 at the unit place. This shows that 24 of 120 numbers have 3 at the unit place. समझा ये कि नहीं समझा अपन? टोटल कितने नंबर्स है अपने पास? 120. Out of 120 we have 24 numbers having 3 at its units place. 24 नंबर में 3 यूनिट प्लेस में होगा. बाकी का डिजिट का मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट प्लेस में 3 होगा. पहला समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो बोलो. आई कैन टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से अपने पास इसको बाजू में रखते हैं. अपने पास 3 डिजिट्स है 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम? कितनी डिजिट है अपने पास? एंड अरेंज ऑल 3. सो हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज देम? देवाशीष 3 में से 3. So how many ways you can arrange? टाइमिंग इस सम को बाजू में रखते हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 6, राइट? 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल है 6. कौन से नंबर बन जाते हैं जरा देखते हैं अपन. इधर लिख रहा हूँ मैं, नीचे मैं इधर नंबर लिखता हूँ. ओके, मैं 5 वाला नहीं कर रहा हूँ. 5 वाले में ज्यादा हो जाएंगे. 120 नंबर्स लिखने पड़ेंगे मेरे को. 6 लिखने को इजी है. एक नंबर बनेगा 1, 2, 3. एग्रीड? एक ये नंबर बनेगा. एक नंबर बनेगा 1. इधर यूनिट प्लेस में 100 प्लेस में 1 ही रखते हैं, दोनों को शिफ्ट कर देते हैं. 1, 3, 2. 2 नंबर बन गए. टोटल कितने बनने चाहिए? 6. और नंबर बनाते हैं. अब 100 प्लेस में 2 को लाते हैं. 2, 1, 3. अभी 1 और 3 को इंटरचेंज कर डालते हैं. 2 को उधर ही रखते हैं. 1 और 3 को इंटरचेंज करते हैं. 2, 3, 1. अब 3 को 100 प्लेस पे लाते हैं. 3, 1, 2 and then 3, 2, 1. कितने नंबर बन सकते थे देवाशीष और बाकी जिनको भी डाउट है? कितने नंबर बन सकते थे? 6 बनाए मैंने. इतना तो समझा. और कोई नंबर नहीं बन सकता है. सब जन समझा क्या इतना पार्ट?
ओके, नाउ हियर ये जो मेरे नंबर्स है इसमें हाउ मेनी नंबर्स आर देयर हैविंग 3 एट इट्स यूनिट्स प्लेस? 3 एट इट्स यूनिट्स प्लेस, 3 यूनिट प्लेस में होना चाहिए, ऐसे कितने नंबर है? 2 दिखा रहा हूं मैं इधर, देखो 3 और 3, ये दो नंबर्स है यूनिट प्लेस में। एग्रीड? कितने बने थे मेरे? 6। टोटल नंबर कितने थे मेरे पास? टोटल नंबर्स, टोटल डिजिट्स आदर, सॉरी, टोटल डिजिट्स कितने थे मेरे पास? टोटल डिजिट्स, 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 नंबर नहीं, डिजिट्स 3। और नंबर कितने बने? और नंबर कितने बने? 3 डिजिट्स है, नंबर कितने बने अपने? डिजिट्स 3, नंबर कितने बने उनसे? 6। सो लेट अस डू डिवीजन नाउ। 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 divided by 3, 2. So at 2 places you can see 3 at the unit place. दो जगह पे आपको 2 यूनिट प्लेस में दिखेगा। दूसरा कलर यूज करता हूं, 2 at यूनिट प्लेस, दो जगह पे दिखेगा। इधर है 2 at यूनिट प्लेस और इधर है 2 at यूनिट प्लेस, और दो जगह पे 1 at यूनिट प्लेस मिलेगा। Everyone, is it clear? Every digit will have equal opportunity at unit place. कितने डिजिट थे? डिजिट्स कितने थे अपने पास? 3, 1 2 3, कितने बने? 6। So 6 divided by 3, 2. So everyone will get equal opportunity. 3 will be twice, 1 will be twice, 2 will be twice. Clear? इतना पॉइंट यूनिट प्लेस पे। अरे क्लियर क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितना बोला उतना क्लियर हुआ? पूरा नहीं, इतना अभी का तो समझा, और भी कुछ डिस्कस करना है मेरे को। ओके, नाउ नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं। यूनिट प्लेस के बाद का प्लेस 10th प्लेस होता है। आई होप यू नो दिस। यूनिट प्लेस के बाजू में 10th प्लेस होता है। लुक एट 10th प्लेस, क्या हुआ है 10th प्लेस में? सामने एग्जांपल है, व्हाट हैज हैपेंड एट द 10th प्लेस। यूनिट प्लेस में एवरीवन इज हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। व्हाट हैपेंस एट द 10th प्लेस? 10th प्लेस में क्या हुआ? चेक 10th प्लेस में 3 is how many times, 2 is how many times, 1 is how many times? टू टाइम्स, राइट? एवरीवन इज एट 2 टाइम्स। 3 2 टाइम्स है। इस बार मैं सर्कल नहीं करता हूं क्योंकि सर्कल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इस बार मैं अंडरलाइन करता हूं। 1 सेकंड, ये देखो, ये 3 इधर है एंड 3 इधर है 10th प्लेस में, बस दो ही जगह पे 10th प्लेस में। 2 इधर है और इधर है। Now the same scenario will be repeated to 100th place also. 100th place में भी देखो, अरे बोलो ना कुछ, बोलो ना, मतलब टाइप करो ना कुछ। Two times. So what final conclusion is what? Everyone gets equal opportunity at every place. Everyone gets equal opportunity at every place. Clear? Is my statement clear to you? At 100 place equal opportunity, at the 10th place equal opportunity, at unit place equal opportunity. 6 divided by 3, 2. 2 times you will be at 100 plus, 2 times I'll be at 100 plus, 2 times you will be at 100 plus. नहीं समझता है?
समझा कि नहीं समझा? एवरीवन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, समझा ना? ओके, नाउ सिमिलरली अपना नंबर, अपने नंबर कितना है? अपना कितने नंबर्स है? टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर पूछ रहा हूँ, डिजिट नहीं पूछ रहा हूँ। नंबर ऑफ नंबर्स कितने अपने? अभी ये जाने दे, इसको इरेज करता हूं मैं। अपने नंबर ऑफ नंबर्स कितने? हाउ मेनी नंबर्स? अभी केस में, अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने उसमें 6 थे, अपने इधर कितने? वेटिंग फॉर द आंसर, यू आर टाइपिंग बट अभी तक आया नहीं। यस, फर्स्ट आंसर आ गया। यस, सो मेनी आंसर्स। ओके, 120, 120 नंबर्स, बराबर ना? ऊपर निकाला भी अपन ने, इधर ये 120 नंबर्स वी हैव। एंड हाउ मेनी डिजिट्स वी आर हैविंग हियर? लास्ट एग्जांपल में 3 थे डिजिट, अभी अपने पास डिजिट्स कितने? 5। सो 120 डिवाइडेड बाय 5, उधर 6 डिवाइडेड बाय 3 किया था, इधर 120 डिवाइडेड बाय 5 करो तो 120 डिवाइडेड बाय 5, 24। सो दिस इज 24। वही तो निकाला मैंने यहाँ पे, ये जो यहाँ पे 24 बता रहा हूँ, 24, या ये इधर का 24, दैट इज द सेम, सिंपल वे से ऐसा है। सो क्या है? 24 टाइम्स अपने पास डिजिट क्या क्या है? 3, 4, 6, 7 एंड 8। So 24 times 3 will be at unit place. 24 times 4 will be at unit place. 6 will be 24 times at unit place. 7 will be 24 times at the unit place. And 8 will be 24 times at the unit place. क्या बोला? समझा क्या? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। कितने डिजिट है अपने पास? 5। सबको 24 बार लगा देंगे तो हो जाएगा ना 120। 24 टाइम्स 3, 24 टाइम्स 4 लिखेंगे, 24 टाइम्स 6 लिखेंगे, 24 टाइम्स 7 लिखेंगे, 24 टाइम्स 8 लिखेंगे। समझा नहीं समझा? अभी भी ये इक्वल अपॉर्चुनिटी ना, एवरीवन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो वही बोल रहा हूं। देखो नेक्स्ट स्टेप में भी सिमिलरली ईच अदर 4 डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इन 24 ऑफ 120 नंबर्स। सबको 24 टाइम्स आने को मौका मिलेगा। 3 को 24 टाइम्स, 4 को, 6 को, 7 को और 8 को भी यूनिट प्लेस। फिर 10 प्लेस पे चलते हैं। The sum of the digits at the unit place of all 120 numbers is 24 times 3, 24 times 4, 24 times 6, 24 times 7, 24 times 8. That is 24 into 28. That is 672. पहला 672 समझा के आगे सिमिलरली मत पढ़ो। टोटल लेना है, टोटल यूनिट प्लेस में up till this point 672 किसका? यूनिट प्लेस का टोटल। 3 24 टाइम्स रहेगा तो 3 3 3 3 3 3 3 ऐड करो 24 टाइम्स, फिर 4 को 24 टाइम्स, फिर 6 को 24 टाइम्स, फिर 7 को 24 टाइम्स, फिर 8 को 24 टाइम्स। इन शॉर्ट 24 कॉमन हो गया तो 24 into in bracket 3 plus 4 plus 6 plus 7 plus 8, and that is 672. Others please reply. Others please reply. समझा क्या 672? अभी अपने एग्जाम्पल में चाहिए तो अपने एग्जाम्पल में 2 बार 1 था, 2 बार 2 था, 2 बार 3 था, तो कितना एडिशन हो गया? 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 2 6 6 3 9 9 3 12 12 अपना टोटल 12 हो जाता अपने एग्जाम्पल में यूनिट प्लेस का टोटल। 2 बार 1, 2 बार 2, 2 बार 3 तो 12 हो गया ना। 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3। Hello. Similarly, sum at
10th place will be 672. 10th place में भी 672 ही टोटल आएगा, क्योंकि वही नंबर 10 में चले जाएंगे, बाद में वो 100 पे चले जाएंगे. कौन सा लास्ट पॉइंट मतलब? अरे लास्ट पॉइंट मतलब आफ्टर दैट स्लैश, सिमिलरली के बाद, इज इट आफ्टर? विल डिस्कस इट टुमारो. अभी टाइम हो अपना आप हो गया. टुमारो आई टेक दिस सम. ओके, नहीं समझ रहा है तो कल लेंगे अपन, कल एक्सप्लेन करता हूं. ओके, जिनको समझा है उनके लिए आगे जाता हूं, कल वापस आके रिपीट करूंगा मैं. तो टोटल हो जाती है आपकी 74,66,592. बहुत बड़ी टोटल हो रही है. 672 at unit plus 1 at 10 plus 10, 100,000 and 10,000. Don't worry, those who are not understood, कल डिस्कस करेंगे वापस इसको. Tomorrow we'll discuss this. Thank you. Bye. Last 2 points I'll explain. That is, this part tomorrow I'll explain. After this line down.